नाउ वी हैव रिच्ड द स्पेशल मोमेंट। और आप सबको पता है कि हमारी एचआर फर्टिनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एचआर कम्युनिटी से कोई इतने सक्सेसफुल पायदान पे पहुंचे, लेवल पे पहुंचे। और खाली एचआर कम्युनिटी को नहीं, बट पूरे गुजरात को और पूरी इंडिया को प्राउड करवाए, दी हैविंग एचआर बैकग्राउंड। एंड हेमांग भाई, आपको याद होगा 2 SHRP इवेंट्स में हम मिले हैं, राइट? एंड वन ऑफ द इवेंट में आपको अवार्ड भी मिला था, आईडेक्स, यू वर रिप्रेजेंटेड एट दैट टाइम। सो रिसेंटली जब हम वीडियो बना रहे थे फाइनल वाला, तो आपका फोटो भी देखा, तो इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस that from our community, from our fraternity, we got our the parliament member. Let's give a big hand to Dr. Hemang Joshi ji. It's a proud moment, very proud moment for all of us. And मतलब मैं सर आपकी लिंक्डइन पे जर्नी देख रहा था। सो आई मतलब मुझे नहीं पता लोगों ने डिटेल में देखा है नहीं देखा है, बट सर आई वुड लाइक टू शो द लिंक्डइन जर्नी ऑफ योर्स, राइट? सो Dr. Hemang Joshi started as a HR trainee in 2015, C8 Tires. It was the first entry in HR field. Then you did the HR trainee in L&T, Chiyoda, 2015 में आपने वो 3 महीने का वहाँ पे इंटर्नशिप किया था HR trainee, and then you went to the Reliance as a HR trainee, right? और वहाँ पे उन्होंने 7 month का वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट किया. So from C8 Tires he started, then L&T, and then Reliance, and then he went to the Piramal Glasses, the summer intern, right? 2 months का वहाँ पे internship आपने complete किया, and then you went to the as a coordinator Switch Global Expo Ministry of Power for 6 months. After that, you went as a campus ambassador Vision India Foundation for 1 year and 6 months, and then he became the municipal school board vice chairman of the board for 2 years and 3 months, and then he joined finally IDEX India, right? And then he started in IDEX India as a management trainee. From management trainee, he became the executive plant HR and admin. Then he became the assistant manager. Then he became the manager journalist HR. Then he became the leader plants and IR. And then directly he became the member of Parliament Vadodara. So, हेमंग भाई, आप बाकी के इवेंट्स में जाते होंगे तो डिफरेंट फीलिंग होगा, बट आज तो आप परिवार में आए हैं एचआर में, एंड सारे आपके मतलब कलीग्स मान लीजिए, आपके मेंटोर्स यहाँ हैं, आपके सब फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो आज तो डिफरेंट फीलिंग होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर. एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स इनवाइट our dear community friend and our honorable leader of Parliament of Vadodara. Let's give a round of applause and a standing ovation to Dr. Hemang Joshi ji. Please. Please, sir. Welcome and many, many congratulations. Thank you. Thank you. Please. All yours. So it has been a tradition since election, at least past 2 months. I'm always between the audience and meal. दोपहर का इवेंट होता है तो लंच से पहले मैं होता हूँ ऑडियंस के बीच में, और शाम का इवेंट होता है तो सबसे लास्ट मुझे बोलना होता है. So I will not, make you wait for the delicious food. I think that's also from Hanuram. Tara's Kitchen. धवल भाई, मुझे अगर पहले पता होता कि इनको प्रेजेंट करना है तो मैं बोल देता कि मैं आईडेक्स में था, तब 2 बार यहाँ पे आके विजिट कर गया हूँ एज एचआर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो जर्नी भाविन भाई ने बोला, so it was a nostalgic journey, and it was like a dream journey for any person who wished to contribute to the society, and particularly when a person is coming from faculty of social work, because we always believe that whatever we do, in whichever capacity we act,
it is completely we do for impacting the society and the community. That's what the thing we are taught from our teachers. Today I have my dean परमार सर. जब मैं फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में था, यहाँ पे मीडिया भी है. मीडिया को अगर मेरी बदमाशियों के बारे में पता करना है तो परमार सर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे डीन थे. और आई हैव माई मैनी ऑफ माई मेंटर्स. आई हैव सुरेंद्र सर. आई हैव जब आप आईडेक्स का जर्नी बता रहे थे, तो एक बात मुझे बोलना पड़ेगा कि ये जब मतलब मेरा जर्नी में याद करता हूँ, तो साथ साथ में मुझे सुरेंद्र सर के साथ मेरे परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के कन्वर्जेशंस भी याद आते हैं. द वे ही ग्रूम्ड मी एज अ प्रोफेशनल, द वे ही taught me to follow my passion and also give my 100% in whatever I do, and dedicate myself in an organization like IDEX. The way I was when I joined IDEX and the way I am as a member of parliament, and now people are appreciating me. I think 50%, at least 50% of my life journey's professionalism credit goes to IDEX. And the way I am taught to take everyone in alignment, the way I am taught to face the resilience, face the dissent, ये सब चीज़ एक HR के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. और वो सारी चीज़ों में a mentor like सुरेंद्र सर, he has pushed me always. एंड कई बार ऐसा होता है, हम जैसे होता है ना कि हमारे पॉलिटिकल सर्कल में ऐसा बोलते हैं कि हर घर पे एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और वो डिसाइड कर देता है इसको ही टिकट मिलेगा, इतना ही सीट आएगा. और क्रिकेट में भी ऐसा होता है, हर घर पे हर चौराहे पे 3 एक्सपर्ट बैठते हैं और वो फिर उनका क्रिकेट का कमेंट्री देते हैं. इसका आज ऐसा अच्छा नहीं था इसलिए ये हुआ. पर जिसने वो जर्नी जिया है उसको ही पता होता है कि वो कैसा रहा. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे लाइफ के 33rd ईयर में मैं लोकसभा में जाऊंगा और वहां पे वडोदरा को मैं रिप्रेजेंट करूंगा. पर जो कुछ भी मतलब हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, उसमें कहीं ना कहीं एज अ टीम SHRP और HR फ्रेटर्निटी के कई सारे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्जुन भाई भी है, कई सारे अनंत भाई है, हमारे सीनियर्स हैं, हिरेन भाई, कई सारे ऐसे फ्रेंड्स थे कि जो मुझे पता भी नहीं था कि वो पूरे इलेक्शन में मुझे कितना सपोर्ट कर रहे थे, पर वो वहाँ पे थे और अचानक से हम मिल जाते थे. और तब मुझे ऐसा गर्व होता था कि एक फ्रेटर्निटी का जो फीलिंग होता है ना, वो कुछ और ही होता है. और अगर हम एज ए HR फ्रेटर्निटी एक दूसरे को इस हिसाब से अगर सपोर्ट करने लगे ना, तो कोई हमें ऐसा नहीं सोचेगा कि HR सिर्फ रंगोली बनाने के लिए. कोई भी प्रोफेशन का इम्पोर्टेंस वो प्रोफेशन के इंसान, वो प्रोफेशन के जो ऑफिस बेरर है, वो प्रोफेशन का जो क्वालिफाइड पर्सन है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करता है. कोई भी प्रोफेशन हो, फिर वो मैं आपको बताऊं HR हो या कोई दूसरा भी प्रोफेशन हो, अगर हम खुद अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम किसी और से वो चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते. अगर हम खुद कोई छोटी सी चीज़ के लिए, कोई छोटे से फायदे के लिए हमारे प्रोफेशन के पर्सन को डिग्रेड करेंगे या डिमीन करेंगे या उसकी फेलियर में हम हंसेंगे, हम खुश होंगे, तो अल्टीमेटली हमें ये बात मानना पड़ेगा कि हम हमारे प्रोफेशन को डिमीन करने में भी खुश हो रहे हैं. अगर ये एक हमारा अंदर का जो फीलिंग अगर आ जाएगा कि कुछ भी हो, ही इज़ फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी, और उसमें ऐसा नहीं है कि उनकी हर एक गलत बात को भी हमें सपोर्ट करना है, पर हर एक अच्छी बात को हमें ग्लोरीफाई करना है, अप्रिशिएट करना है
और उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वहां पे जाके उनके साथ खड़े रहना है। इतनी सी छोटी सी बात, अगर वो हम हमारे कलीग के साथ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम HR डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं और किसी ऑपरेशन वाले ने आके कोई हमारे कलीग के बारे में कमेंट किया और कलीग के साथ हमारे इंटरनल कंपटीशन चलता है परफॉर्मेंस के मामले में या रेटिंग के मामले में या वॉट, और अगर हम खुश हो रहे हैं तो वहां पे हम डिक्लाइन कर रहे हैं अपने आप को, अपने प्रोफेशन को, अपनी टीम को। वी एज अ फैमिली, वी एज अ फ्रेटर्निटी हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जितना भी है। कई सारे लोगों से मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है, पर जितना भी मुझे है उससे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज अ प्रोफेशन वी नीड टू स्टैंड टुगेदर, बी टुगेदर, एंड we can really impact the society at large. We can really impact our fraternity. We can really impact each other in many ways. मेरा जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर रहा, मतलब मुझे पता भी नहीं था। मैंने जिस दिन मेरा नाम डिक्लेयर हुआ उस दिन भी मुझे नहीं पता था सुबह उठने के समय के शाम को मैं सो नहीं पाऊंगा। वहाँ पे भी मतलब इट वॉज नॉट ऐसा रेड कारपेट। एक बार किसी ने ऊपर छत लगा दिया, वो भी वायरल हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ों में वी आर ऑलवेज अंडर द स्कैनर, और उसमें एज एन HR और एज अ स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क मेरी जो लर्निंग्स थी, मेरे जो एप्लीकेशंस थे, वो बहुत ही काम आए। कल ही परमार सर कई सारे स्टूडेंट यूनियंस आके मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे MS यूनिवर्सिटी के लिए, और वो बोले कि हम स्टूडेंट लीडर हैं तो थोड़ा बदमाशी तो करेंगे ना। और मैंने उनको बोला खैर ऐसा एक स्टूडेंट लीडर हूँ कि जो फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में भी डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूँ। So student leader, being a leader doesn't entitle to degrade our performance. Being a leader doesn't entitle us to discount our own performance, our own contribution to the work we do. We can still lead and also do our job. वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिरेन भाई और SHRP, आपने जो सही बोला, आईडेक्स के लिए मैं यहाँ पे आया था, तो कोविड के टाइम पे भी हमारा जो आईडेक्स ने जो पॉलिसी बनाया था उसको लेके भी हमको यहाँ पे अप्रिशिएशन मिला था। कई बार अभी भी मैं भूल जाता हूँ कि अभी मैंने रिजाइन कर दिया है। that sense of commitment and belongingness I have with my organization, but I believe that हम कहीं पे भी है, if we are flag bearer of our organization, if we are proud of our organization, then there is no looking back for the organization's growth. वो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप अगर HR में ही नहीं आएगा तो हम एम्प्लॉयज से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर हम HR होके ही हम इतना एंगेज अपने आप को नहीं मानेंगे, मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो आप एंगेज हो, वो आप सोच लो क्या करना है। पर अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल रहा है, वो एज एन HR आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आपको उसके लिए वो कमिटमेंट नहीं आ रहा है तो आप लोगों के पास एक्सपेक्ट मत करिए कि उनको भी आएगा। पहले आप वो जियो, पहले आप वहाँ पे महसूस करो, और तभी आपको वो चीज़ फील हो पाएगा। तो उस हिसाब से मतलब डेप्यूटी चेयरमैन भी मैं था म्यूनसिपल स्कूल बोर्ड का, तो 5:30 बजे तक मेरा जॉब, उसके बाद कॉरपोरेशन पे जाना, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, और कॉरपोरेशन ऑल्सो सपोर्टेड मी। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो सभी जो डेवलपमेंटल वर्क है, इवेंट्स है, वो सैटरडे को रखते थे, संडे को रखते थे। उसमें कई बार मेरे ऑफिसर्स आके मुझे बोलते थे, साहब તમારે નોકરી છે તો અમારે પણ નોકરી હોય તો રવિવારે જ રજા મળે। तो फिर भी लाइक मैं आपको ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी जर्नी है, मेरा सक्सेस है, पर लोगों का सेक्रीफाइस भी इसके साथ है, लोगों का सपोर्ट है।
कॉरपोरेशन में भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट किया। मैं जब बोलता हूँ कि आईडेक्स में या कोई मेरे कॉर्पोरेट में मुझे सपोर्ट किया, तो कभी सर ने मुझे ऐसा नहीं बोला तू चिंता मत कर, अपना पॉलिटिक्स में ध्यान दे, यहाँ पे हम देख लेंगे। नो, ही हैज़ पुश्ड मी कि दिस इज द प्रायोरिटी, ये हमें पहले करना है, फिर तू देख ले कैसे कर सकते हैं। और सर का ऐसा बहुत ही शाय नेचर है। सर जब भी हम ऐसा बोलते તું તારી રીતે જોઈ લે શું કરવાનું છે, પછી મારે મારી રીતે જોવાનું હોય છે કે મારે શું કરવાનું. He never like he groomed me like a son, and I have to give that credit to him. That the most thing I will miss in my life, that a manager and a mentor like Suren sir, that he has always been a very guiding force to me to do the right thing in the right way. So it is very much important. So जब भी हम कोई जर्नी हमारी लेते हैं, फिर कई बार ऐसा होगा कि आपको being an HR, if we want to go ahead and there is a support system is required. अगर आपसे 10 साल सीनियर है HR में और उनको ऐसा लगेगा ये क्या कल का है और ये क्या करेगा, और वैसा हम सोच के उनको हम डिमोरलाइज करते रहेंगे, तो वो क्या करेगा कि वो आपको बोल नहीं पाएंगे कि भाई मैं भले ही जूनियर हूँ पर मुझे थोड़ा इसमें मेरा ये पैशन है या मैं ये कर पाऊँगा, पर वो अपना रास्ता अलग से निकाल लेंगे। तो हमें कोई भी टैलेंट हो उसके सीनियोरिटी जूनियरिटी पे ना पढ़ के उसको टैलेंट को हमें नर्चर करना है, टैलेंट को हमें ग्रूम करना है। अगर वो हम करेंगे तो वो टैलेंट कभी आपको भूलने ही नहीं वाला है। वो कहीं पे भी जाएगा वहाँ पे उसको सब कुछ मिलेगा, पर फिर भी वो घूम फिर के आपको याद करेंगे कि ये लोग थे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो बीइंग एन HR हमारा बहुत बड़ा रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बीइंग एन HR हमें पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजनशिप बनना है, फिर हम सबको बनाना पड़ेगा। और बीइंग एन HR हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिट करना है, हमें हमारे फ्रेटर्निटी के साथ कमिट करना है। और सच में मैं बता रहा हूँ कि अगर एक भी बार अगर आप अपने फ्रेटर्निटी के इंसान के फेलियर पे खुश हुए, मतलब आप समझ लो कि आपका अपने फ्रेटर्निटी के लिए जो कमिटमेंट है उस पर धब्बा लगेगा। तो उस पर हमें ऑलवेज एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। बस इतना ही कह के मेरे से भी मेरे ये क्या बोलते हैं मोनोलॉग से भी अच्छा डिनर आपका वेट कर रहा है। सो उसके लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, यहाँ पे बुलाया, ये तो मेरा घर जैसा है, सब परिवार जैसे है, सब सीनियर्स हैं और ऑलवेज आप सब मेरे सीनियर्स ही रहेंगे और मैं हिमांग ही रहूँगा। हिमांग भाई भी नहीं, सर भी नहीं, कुछ भी, मैं आपका हिमांग ही हूँ। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर HR fraternity and thank you so much for having me here. जय हिंद। आप लास्ट 2 टाइम पे आए थे स्टेज पे, आप जीते भी थे, आपको अच्छा अप्रिशिएट भी किया था, तो हमेशा यहाँ पे 5 मोमेंट तो होते ही हैं राइट। सो इस बार भी होगा, राइट। और आप तो एक बहुत बड़ा इतिहास रच के आए हैं, 5,82,000 वोट के मार्जिन से जीत के आए हैं, बहुत बड़ा बात है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, राइट। एंड प्राउड की बात अपने लिए ये है कि बहुत यंग एज में आपने ये मुकाम हासिल किया है। सो मतलब पॉलिटिकली मैं जितना समझता हूँ आपकी जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। Just for a matter of pride for Vadodara, I am the 8th youngest MP in the nation, and the winning margin for me is also 7th in the nation. Amazing. So शुरुआत करते हैं फेलिसिटेशन की, right? So first of all, like to invite for the plant memento. So Dr. Bhupendra sir, please. Everyone
तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Voucher gift hamper by Team Hanuram. वासु गिफ्ट हैम्पर बाय आवर पिलर SHRP टीम. आ जाओ सब लोग स्टेज पे. लेट्स ऑल द पिलर्स ऑफ SHRP यंग ब्रिगेड. Now, for the Just Call Charitable Trust Sparrow House Memento, so requesting our today's all dignitaries to please join us on a stage for the Memento. All the dignitaries, please join us on a stage. Please, please, आइए, please. Whatever your thing is, we've got. प्लांटेशन मध्ये यामध्ये पण आपण एक स्थापित केली आता म्हणजे कॅम्पिंग इव्हिनिंग माझी. आप सबको पता है कि सबसे जबरदस्त SHRP की तरफ से फेलिसिटेशन जो होता है SHRP बिग मोमेंटो. So especially for Dr. Hemang Joshi ji. So would like to invite all the senior SHRP committee members. Please join us on stage. Senior SHRP committee members. लक्ष्मण भाई तो यज्ञ में भी आने के लिए बोल रहे थे. So the word is thank you for making HR fraternity proud. So this memento from all of us. Everybody, let's give a big hand.